Good evening, ladies and gentlemen. Maze. Yes, that's the theme of our program today. So here we are, all set to begin with a bang. Are you all ready? Are you with me? I can't hear you. Life is a maze, winding through twists and turns, leaving each in a daze. It is unpredictable, a flawless reflection of our lives. The victorious who reaches his destination is he who strives. Well, here you are in this maze of life, seeking the source of eternal contentment and happiness. Yes, there is no easy path to reach the destination of ultimate joy and happiness. So here we present the maze of life, hopefully inspiring you all to keep on the uphill battle and reach the very pinnacle of glory, success, and power through fortitude and determination to construe a nation, a world supreme. We all are born free, but life bounds us with chains. And Bidu, a boy, is one amongst us who wishes to enjoy life, break the shackles of rules, advice, suggestions, burden of studies, monotonous routines of home to school, school to tuitions, and the list is endless. What more can you expect of this poor little soul? Good Lord, so many expectations? Where do these little children hide under so much of pressure? Just give him a break. And Bidu just walks away aimlessly in search of joy, supreme joy and happiness. He meets a magician on the way. Seeing the gloomy child, the magician takes the charge of bringing back a smile on his face. They enter the magical maze of joy with every clue the magician picks up from his hat. Boy, you look like you're lost in a maze. I'll show you things which will make you amazed. Abracadabra! And the clue says... What's that? Where are we going? Can you please help me? Oh! The clue says culture. Wow, countryside. So here's presenting the folk music of India.
What melody! That reminds me of those days I spent amidst nature at my hometown in countryside. Ah, lovely. And the magician, with Bidu, leaves behind the dusty lanes of the countryside and proceeds further into the maze in search of their destination of joy. Oh, but where's Bidu? Bidu is still enjoying the folks of his countryside. Where are you taking us next, Mr. Magician? Look, my friend, I'm a magician. Let's see where our magic leads us to. Chumanta Chu! Oh! It's the poets! Wow, poets? Amazing. I love poetry. Come on, hurry up. I want to see your poets. So here we present the modern poets of today. Just wait and watch what they have to say. नमस्कार, आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिवादन। मैं हूं कवि आदित्य, जो इस सभा का संचालन करते हुए आपको रोज की दौड़ धूप से दूर ले जाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करें वह सम्मेलन जिसमें शैली है, गुदगुदी है और है हंसी, संवाद है, विवाद है और है प्रतियोगी। देखने में बालक लगे पर बातों के हैं योगी, हंसते हुए प्रॉब्लम बताना यही है इनकी खूबी। तो प्रस्तुत है बाल सवाल हमारे टॉम, डिक एंड हैरी अर्थात वत्सल, आशीष और शाश्वत। कोई मुझे यह बतलाए है कहाँ का ये इंसाफ, मैं उठाऊं भारी बैग भैया कॉलेज जाए खाली हाथ, मैं उठाऊं भारी बैग भैया कॉलेज जाए खाली हाथ। पापा कहें कि प्रोजेक्ट सबमिशन में वो हैं बिजी, मम्मी कहें सुबह से काम करते करते वो हो गए डिजी, मम्मी कहें सुबह से काम करते करते वो हो गए डिजी। अब कैसे हम उन्हें बताएं, अब कैसे हम उन्हें बताएं। इवन स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट सो इजी, अर्ली मॉर्निंग स्कूल है जाना, नून में हो होमवर्क करना, शाम को भी खेल ना पाएं, डांस और म्यूजिक की क्लास में जाएं, उस पर से एग्जाम का टेंशन, उस पर से एग्जाम का टेंशन। यू टेल मी हु कैरीज मोस्ट बर्डन। धन्यवाद। टीचर माय डियर टीचर मेरी गुत्थी सुलझा दो, टीचर माय डियर टीचर मेरी गुत्थी सुलझा दो। जब एनो नो है तो के एन ओ डब्ल्यू नो कैसे है बता दो, जब एनो नो है तो के एन ओ डब्ल्यू नो कैसे है बता दो। विच कभी डायन कहलाए कभी बन जाए कौन, विच कभी डायन कहलाए कभी बन जाए कौन। THERE भी देर और THEIR भी देर, THERE भी देर और THEIR भी देर।
इस गुत्थी को समझने में हमारे नंबर गए वैर। इस गुत्थी को समझने में हमारे नंबर गए वैर। वाह 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 वाह। धन्यवाद। पेड़ पर से सेब टपका, पेड़ पर से सेब टपका, पर न्यूटन ने ना खाया। गिरने की इस क्रिया पर भी, गिरने की इस क्रिया पर भी उसे आइडिया आया। हे प्रभु, हे प्रभु, जो सेब मेरे ऊपर गिरता, मैं आपके एक्शन पर रिएक्शन करता। झटू सेब को खाता और चैप्टर को मैं बंद करता। अब बात सुनो उस आर्यभट्ट की, अब बात सुनो उस आर्यभट्ट की, जिसने किए कई आविष्कार। उसने बताया पृथ्वी है गोल, उसने बताया पृथ्वी है गोल, और लगाया सूरज के चक्कर गोल गोल। उसने एक नंबर बनाया, उसने एक नंबर बनाया जिसका आकार था गोल। अब हमें डर लगे कि टेस्ट में ना आए हमारे नंबर गोल। धन्यवाद। वाह वाह। तो देखा आपने, आंखें सबने पाई हैं पर नजर किसी किसी ने, आंखें सबने पाई हैं पर नजर किसी किसी ने, होठ सबने पाए हैं पर मुस्कान किसी किसी ने, मुस्कान किसी किसी ने। तो आइए अब हम चलें बचपन से लड़कपन की ओर, जहाँ उत्तर याद करना है बहुत कठोर। तो प्रस्तुत है जोड़ों में जुगलबंदी करते हुए आपसे अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे मंगेश सहज और श्रुति संजना। नमस्कार, हमारी इस कविता का शीर्षक है इतिहास का पर्चा। और पर्चे का इतिहास। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। जब से जागा था तब से बाया नैन फड़कता था। जो उत्तर मैंने याद किए, जो उत्तर मैंने याद किए, उनमें से आधे याद हुए, वह भी स्कूल तक पहुंचने में यादों में बर्बाद हुए। प्रश्न पत्र पर जब निगाह पड़ी, प्रश्न पत्र पर जब निगाह पड़ी, तब सारा बदन पसीना था। फिर भी मैं डरा नहीं, यह जो मेरा सीना था। कॉपी के बरगद पर मैंने कलम कुल्हाड़ा दे मारा। घंटे भर के भीतर भीतर, घंटे भर के भीतर भीतर कर दिया मैंने प्रश्नों का वारा न्यारा। तो उत्तर कैसे लिखे थे जरा सुनिए। अकबर का बेटा था बाबर, अकबर का बेटा था बाबर, जो वायुयान से आया था, उसी ने इन महासागर अमेरिका से मंगवाया था। गौतम जो बुद्ध हुए जाकर, गौतम जो बुद्ध हुए जाकर, वो गांधी जी के चेले थे। दोनों बचपन में नेहरू के संग आंख मिचोरी खेले थे। होटल का मालिक था अशोक, होटल का मालिक था अशोक, जो ताजमहल में रहता था। ओ अंग्रेजों भारत छोड़ो, लाल किले से कहता था। झांसा दे जाते थे झांसी की रानी, झांसा दे जाते थे झांसी की रानी, जो अक्सर अशोक के होटल में खाया करती थी बिरयानी। इसी तरह चुन चुन कर मैंने, इसी तरह चुन चुन कर मैंने प्रश्नों के पापड़ बेल दिए, उत्तर के ऊंचे पहाड़ टीचर की ओर ढकेल दिए। टीचर बेचारे इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ पाते, लाचार पुराने चश्मे से इतिहास ना क्या पढ़ पाते। उनके बस के बाहर, उनके बस के बाहर मेरे इतिहास का भूगोल हुआ। बस फिर क्या होना था, मेरा नंबर तो गोल हुआ। धन्यवाद। वाह वाह। नमस्कार, हमारी कविता का शीर्षक है धनुजनक का किसने तोड़ा। गए निरीक्षण के लिए, गए निरीक्षण के लिए किसी शाला में एक निरीक्षक पढ़ा रहे थे कक्षा में बच्चों को हिंदी के शिक्षक। धनुषभंग का पाठ पढ़ाते थे, पुस्तक को खोले, देख वहाँ का दृश्य, निरीक्षक उन छात्रों से बोले। बोलो बच्चों, धनुजनक का किसने तोड़ गिराया। डरकर एक छोटे बच्चे ने अपना हाथ उठाया। पकड़ा कान प्रथम बच्चे ने और हाथ फिर जोड़ा, बोला सच कहता हूँ श्रीमन, मैंने धनुष न तोड़ा। शिक्षक से निरीक्षक बोले, क्या है आप पढ़ाते, धनुजनक का किसने तोड़ा। बच्चे नहीं बताते। थोड़ा रुककर शिक्षक बोला, सच कहता है बच्चा, इसने धनुष न तोड़ा, यह है सीधा सच्चा। रुष्ट हो निरीक्षक ने प्रिंसिपल को बुलवाया, कक्षा की सारी घटना को कहकर उन्हें सुनाया। प्रिंसिपल बोले, अभी चपरासी को भेज बढ़ई को बुलवा लूंगा, क्यों है इतनी चिंता करते, जल्दी ही जुड़वा लूंगा। लौटे वहां से निरीक्षक और अपनी रपट बनाई। फिर वह रपट उन्होंने शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई। चिट्ठी शिक्षा मंत्रालय से निरीक्षक को आई, जुड़वा लेना धनुष जनक का हमने ग्रांट पठाई। धन्यवाद। वाह 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 वाह। तो आइए अब हम चर्चा करें हर रोज के मुद्दों पर। महंगाई का कहर हम सब पर करे प्रहार, मगर हमारी सोनी हंसाकर प्रकट करे अपने विचार। प्रस्तुत है कवित्री सोनी। धन्यवाद आदित्य। अभिवादन। महंगाई से जूझ रहे भारतवासियों को सोनी का नमन। आज बाजार का यह हाल है,
आज बाजार का यह हाल है, ग्राहक का मुंह पीला, दुकानदार का लाल है। हमने दूध वाले से पूछा, दूध में इतना पानी क्यों है? हमने दूध वाले से पूछा, दूध में इतना पानी क्यों है? वह बोला, गाय से पूछो। गाय से पूछा तो बोली, पानी पीती हूँ तो पानी ही दूंगी, चारा तो घोटाले में ख़त्म हुआ है, मैं गाढ़ा दूध कैसे दूंगी? गाय से पूछा तो बोली, पानी पीती हूँ तो पानी ही दूंगी, चारा तो घोटाले में ख़त्म हुआ है, मैं गाढ़ा दूध कैसे दूंगी? कपड़े वाले के पास कपड़ा खरीदने गए। कपड़े वाले के पास कपड़ा खरीदने गए तो हमने कहा, आजकल डिस्काउंट का ज़माना है, हमें कितना मुनाफा दोगे? उसने कहा, आपको 50% से 100% जेंटलमैन बनाने की कीमत तो हम दुगनी ही लेंगे। उसने कहा, आपको 50% से 100% जेंटलमैन बनाने की कीमत तो हम दुगनी ही लेंगे। फल खरीदने ठेले पर गए। फल खरीदने ठेले पर गए तो हमने पूछा, यह मीठा तो है? फल वाला बोला, गीता में श्री कृष्ण कह गए, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर बंदे। गीता में श्री कृष्ण कह गए, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर बंदे, तो फल लेना आपका कर्म, देना कर्म है मेरा। अब फल लें और अपना अपना कर्म करें। फल मीठा है या कड़वा, या प्रभु पर छोड़ दें। फल मीठा है या कड़वा, या प्रभु पर छोड़ दें। धन्यवाद। वाह, वाह, वाह। मोबाइल का जादू हर जगह छाया है। मोबाइल का जादू हर जगह छाया है। कवि सुयश ने इसे दर्शाने का कार्य अपनाया है। प्रस्तुत है कवि सुयश। नमस्कार। भिन्न भिन्न से रूप है इसके, भिन्न भिन्न से रूप है इसके, भिन्न भिन्न है बोली। कभी दे संदेश हमको और कभी सुनाए गीतों की रंगोली। तो क्या समझे आप, हम कर रहे किसकी बात? मोबाइल जो है आज की मजबूरी, बातें करे कम, शोबाजी है पूरी। एफएम के गाने सुनाकर, एफएम के गाने सुनाकर उतारे सफ़र की थकान, इंटरनेट से कनेक्ट कर करे काम आसान। पर जब भी कोई ज़रूरी बात का करना हो बखान, पर जब भी कोई ज़रूरी बात का करना हो बखान, हमेशा मोबाइल के नेटवर्क में आ जाए व्यवधान। ना सिर्फ फ़ोटो खींचे, ना सिर्फ फ़ोटो खींचे, करे पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। गेम्स का चस्का ऐसा लगाए चाहे कितनी भी दो वार्निंग। एसएमएस की शब्दावली, एसएमएस की शब्दावली भी इसके ज़रिए आई। सिंगल अल्फ़ाबेट भी वर्ड बन जाए है दुहाई। वाई ओ यू बन जाए यू, वाई ओ यू बन जाए यू, FOR बन जाए 4। हे प्रभु शॉर्टकट की इस दुनिया में भाषा जाए किशोर, भाषा जाए किशोर। धन्यवाद। वाह, वाह, वाह। पृथ्वी हमें इतना प्यार देती है, हमें जीवन प्रदान करती है। हम नादान हैं जो उसे दूषित कर रहे हैं। इसी पीड़ा को व्यक्त करने आ रहे हैं कवि शरद और कवित्री शगुन। सिटी हो क्लीन एंड ग्रीन, यह स्लोगन है कितना इफेक्टिव। सिटी हो क्लीन एंड ग्रीन, यह स्लोगन है कितना इफेक्टिव। आइए पता करें यह बात, लगाकर कुछ डिटेक्टिव, लगाकर कुछ डिटेक्टिव। नेता ने एक पौधा लगाकर हरियाली पर जोर दिया। नेता ने एक पौधा लगाकर हरियाली पर जोर दिया। अगले दिन ही खेतों की जगह मॉल्स के ऑर्डर पर साइन किया। अगले दिन ही खेतों की जगह मॉल्स के ऑर्डर पर साइन किया। पार्टी प्रचार के पोस्टर, पार्टी प्रचार के पोस्टर लोग तभी पढ़ते हैं जब वह किसी सुंदर इमारत पर चिपके होते हैं, जब वह किसी सुंदर इमारत पर चिपके होते हैं। हम सब दिल से चाहें कि हमारा देश बने महान। हम सब दिल से चाहें कि हमारा देश बने महान। इसलिए गर्व से प्लास्टिक का तिरंगा लहराए हर श्रीमान। इसलिए गर्व से प्लास्टिक का तिरंगा लहराए हर श्रीमान। धन्यवाद। वाह, 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 वाह। जब हमने अपना ये कवि सम्मेलन प्रिंसिपल मैडम के सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने हम